Hello everyone, welcome to English Treasure. So today we're gonna talk about how to open a speech. Yes, there are a lot of people when they are going for a presentation, public speaking, speech, group discussions, debate. They have a lot of hesitation, or they face a lot of problem because they hesitate a lot. They have a fear, from the audience, that what the audience thought about us. Actually, when you're going to deliver a speech, then believe that. Believe, a thought process must be like that कि this audience doesn't know anything. मतलब आज इस जो ऑडियंस का जो होल्ड है ये मैंने ले रखा है. ऑडियंस डजंट नो अबाउट एनीथिंग द टॉपिक यू आर गोइंग टू स्पीक, एंड वॉट एवर द नॉलेज इज इन यू ओनली. एंड स्पीक without fear, speak with a lot of confidence, then only he can deliver a speech. So I gonna give you effective ways, very superb ways how to give a very good impromptu and good speech without any hesitation and without any fear. So let's start. The first is starting is very important, because when you're going to deliver a speech or for a public speaking, you must know about your audience. पहली चीज़ जो आपने क्या करनी है, आपको पता होना चाहिए हु इज़ योर ऑडियंस. क्या वो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, क्या वो कॉलेज गोइंग है, क्या वो यूथ है, या विच टाइप ऑफ ऑडियंस दे आर, एंड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट देन give a speech according to that. So first of all, when you're opening a speech, opening is very important. So it could be like that. Wish you a bright and charismatic good morning to all of you all here. I am dash. Dash means आपका नाम आप इसमें ऐड ऑन करोगे. I am नेहा. बिफोर यू इंटेलेक्चुअल्स, जो भी आपके सामने बैठे वो इंटेलेक्चुअल्स ही होंगे. बिफोर यू इंटेलेक्चुअल्स, I would really like to thanks, मैं अपना gratitude पेश करना चाहूँगा. I would really like to thanks to to all the faculty members who has assigned me, yeah, to all the audience who has given me, who has assigned me such a tremendous opportunity to come at the stage. इस stage पे आप जहाँ बोल रहे हो, podium, dais, stage, whatever where you are speaking, I feel immense pleasure and proud to represent myself before you. मैं बहुत बड़ा सौभाग्य फील कर रहा हूँ. I feel immense pleasure and proud to represent myself before you. I will expect you will lend your ears to me attentively. कि आप मुझे ध्यान से सुनेंगे. इसको आप कैसे बोलेंगे? I will expect you will lend your ears and eyes to me attentively. आप मुझे ध्यान से सुनेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट द टॉपिक. लेट्स टॉक अबाउट. अब हम इस बारे में एक बात करते हैं. वेन एवर यू आर गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच, एक तो अपने ऑडियंस को ध्यान में रखना है, तब अपनी स्पीच को स्टार्ट करना है. एंड वेन यू आर गिविंग अ 1 minute स्पीच, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पीच देने गए, इट्स ओनली 1 minute. समबडी सेड दैट यू हैव टू स्पीक अबाउट दिस टॉपिक एंड दिस मिनट यू हैव ओनली 1 or 2 minutes. तब आपने इतना बड़ा वेलकम नहीं करना. यू हैव टू मेक इट अ प्रिसाइज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. और इट इज़ अ इम्प्रॉम्प्ट स्पीच, देन यू कैन प्रिपेयर. अगर आपको इम्प्रॉम्प्ट स्पीच मिली है, आपको पहले स्पीच मिली है 1 month बिफोर और 2 weeks बिफोर, देन यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ. अगर आपको एट अ मोमेंट मिली है और इट्स ऑफ 1 or 2 minute स्पीच, देन यू नीड नॉट टू स्पीक दिस मच अबाउट, यू नीड नॉट टू थैंक्स अ लॉट. ठीक है. टुडे वी गोना टॉक अबाउट डैश एंड डैश. फिर उसके बाद यू गोना स्टार्ट द टॉपिक. लेट्स टॉक अबाउट, or you can say that I am speaking to you. I'm speaking to you today about whatever the topic is, about poverty, dowry system, whatever. To begin, dash is important. To begin with, जो भी आपका टॉपिक है, इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, कैसे भी. नाउ व्हेन यू स्टार्ट द टॉपिक ना, यू फील लाइक दैट कि ऑडियंस इधर उधर मंडराना शुरू कर दिया. दे आर चेंजिंग देयर स्टीट्स एंड दे आर गेटिंग बोर. नाउ वी गोना टॉक अबाउट 7 effective topics that will engage your public into your speech. पब्लिक को कैसे एंगेज करना है आपकी स्पीकिंग में. सो द फर्स्ट वन इज इफेक्टिव वेज टू ओपन अ स्पीच. आपको अपनी स्पीच को ओपन कैसे करना है. द फर्स्ट वन इज क्वाड. व्हेन यू आर गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच, स्टार्ट विद द क्वाड. क्वाड होता है कोई ऐसा मैसेज, जैसे हम सुबह मॉर्निंग में मैसेज भेजते हैं ना, व्हाट्सएप करते हैं, वैसे आपने एक प्यारा सा सुंदर सा क्वाड से स्टार्ट करना है. इट यूजली टेक्स मी 2 to 3 weeks टू प्रिपेयर अ गुड इम्प्रॉम्प्ट स्पीच. मुझे 2 से 3 हफ्ते लग गए एक ऐसी स्पीच को. फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी.
पॉवर्टी इज़ अ वेरी अगर हम इसका ये सिंपल टॉपिक भी और एक बहुत ही एंगेजिंग टॉपिक भी है इफ़ यू डिलीवर अ स्पीच रिगार्डिंग टू दैट. So it usually take me 2 to 3 weeks to prepare a good in-prompt speech. तो आपने क्वाड से शुरू किया, लोगों ने आपको थोड़ा सुनना शुरू किया. देन आफ्टर यू हैव टू स्पीक व्हाट इफ मीन्स अब हम बात करेंगे 7 इफेक्टिव वेज टू डिलीवर अ वेरी इफेक्टिव स्पीच ताकि लोग भी आपको उसमें ध्यान से सुने. द नेक्स्ट वन इज व्हाट इफ एवरीवन कैन रीड ईच अदर माइंड. एक पब्लिक वर्क कोई भी स्पीच दे हो, किसी भी स्पीच के बारे में बात करो, उसमें व्हाट इफ डाल दो कि अगर ऐसा हो जाए तब क्या. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ एवरीवन कैन रीड ईच अदर माइंड. अगर सभी एक दूसरे का माइंड पढ़ने लग जाए तो क्या हो जाए. व्हाट इफ दैट the riches of the universe have to live the life of the poverty. अगर उनको पॉवर्टी की ज़िंदगी जीनी पड़े तो क्या हो जाए. जिस भी टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो तो अपनी ऑडियंस को इंगेज करने के लिए, अपनी ऑडियंस को उसके बारे में सोचने के लिए आस्क व्हाट इफ, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा. नेक्स्ट you can talk about imagine. Now take your public into an imagination. For example कोई भी आप टॉपिक में बात कर रहे हो उनको विजुअलाइज कराओ. विजुअलाइज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो क्रिएट करो, उसमें कुछ विजुअलाइजेशंस डालो. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक विजुअलाइजेशन लिखा है यहाँ पे. इमेजिन जंपिंग आउट ऑफ अ स्काई डाइविंग प्लेन एंड डिस्कवरिंग योर पैराशूट डजंट वर्क. आप एक स्काई डाइविंग कर रहे हो, आप प्लेन के ऊपर से छलांग लगा रहे हो और एकदम से आपने पैराशूट खोला और इमेजिन दैट इज़ नॉट ओपनिंग, वो ओपन ही नहीं हुआ. आपके अंदर क्या थॉट्स क्रिएट होंगे, क्या आप सोचोगे से, ठीक है. व्हाट मेमोरीज फ्लैश बिफोर यू एंड सडनली इट ओपनड, वो खुल गया. नाउ टेल मी बिफोर द मेमोरी, बिफोर इट हैपेंड एंड आफ्टर क्या क्या थॉट्स चले. ठीक है. तो ऐसे ही इफ़ यू आर टॉकिंग, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ टॉपिक ऑफ पॉवर्टी. फॉर एग्जाम्पल इफ every riches they are facing the problem of poverty, they have to live a life of a poverty. उनको कुछ ऐसा कुछ हुआ कि उनको पॉवर्टी की लाइफ जीनी पड़े. सो what is the life before and what is the life and what is the life afterwards, उसकी बाद की लाइफ कैसे हुई. So you can engage by doing this. You can engage your audience by making it to imagination level. आप उसको imagine करा रहे हो कि ऐसे आपसे आपको बोलना है. The next one is question is ये तो एक ऐसी चीज़ होगी कि अगर आप अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन करते हो ना, इतनी एंगेज कर देते हो आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को और इतना अपनी स्पीच को बेटर नहीं बेस्ट बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट who wouldn't want to live in life of on an exotic island. कौन ही एक रिच जैसी लाइफ जीना चाहता है, कौन ही एक एग्जॉटिक आइलैंड पे कुछ दिन मजे के want to live a life of exotic. Who wouldn't want to live on an exotic island. एक exotic island पे कौन रहना पसंद नहीं करता. तो ask the questions from the public. अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो या ask a question from them, even they are replying or not. आपका उनका रिप्लाई करना मैटर नहीं करता, आपका क्वेश्चनिंग करना मैटर करता है ताकि वो पब्लिक आपको ध्यान से सुने, ताकि वो भी कुछ अपना इंटरेस्ट उसमें डेवलप करे और दिखाए. The next important topic is that silence. Whenever you are delivering a speech, कभी भी ये मत सोचो कि आपने लगातार बस बोलते ही जाना है. Take a pause. Pause is very important. Silence is very important. ये दो काम करती है. पहला, आपकी ऑडियंस को कैसे एंगेज रखती है. अगर आप 1 या 2 सेकेंड का पोज लेते हो, आपने क्वेश्चन करा, पोज लिया, तो ऑडियंस सोचेगी यार अभी क्या बोलने वाला है. दे आर सो क्यूरियस व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक नेक्स्ट. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने एक साइलेंस लिया, पोज लिया, एंड पोज ऑल्सो हेल्प यू. अगर आप 2 to 10 सेकेंड्स का कुछ स्पीच में पोज लेते हो, इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू मेमोराइज द नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू स्पीक. सो पोज
एक ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपकी स्पीच को बेकार बना रहा है. एक्चुअली इट गिव एम्फेसाइज ऑन योर स्पीच. So taking a pause in your speech when you are communicating with the public, you are doing a public speaking, you are delivering a speech, you are doing anything. Pause, taking a silence, taking a pause is must. इवन ऑफ 2 seconds. और अगर आप 10 seconds का पूछ लेते क्वेश्चन पूछने के बाद, द ऑडियंस विल लेंड योर ईयर्स एंड आईज अटेंटिवली टू यू. आपको कहना नहीं पड़ेगा. इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच. सो द नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स. व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच, द स्टैटिस्टिक्स मैटर अ लॉट. अगर आप अपनी स्पीच दे रहे हो, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ टुडे इज सेइंग डैश एंड डैश. आज का जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये कह रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज लाइक दैट, look to your left or look to your right. One of your seatmate will, आप में से फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप हेल्थ इश्यूज़ की बात कर रहे हो, तो लुक एट योर लेफ्ट एंड लुक एट योर राइट. वन ऑफ योर सीटमेट्स विल हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ बीपी, शुगर और कैंसर. आज हर एक इंसान जो एक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डैश एंड डैश नंबर्स, इनमें से एक ना एक तो कैंसर का मरीज़ है. 100 में से एक ना एक तो आपको मिल जाएगा पेशेंट. यू कैन गेट अ पेशेंट ऑफ 100 out of 1 that is facing a problem of cancer. So you can, in this room, 90% of us are going to doing dash and dash. जो भी आप you're talking about addiction of mobile and anything, any addiction. So you can use the statistics so that the people start believing that your speech has something. Yeah, they are using a they are using stats in that, there is something true in it. So in the end, when you are going to end a speech, the powerful statement and the phrase you are going to end up while concluding, last but not least, I would like to say that अब अपने closing करने, opening you come to know that how to do it. Now you are going to close the speech. अब closing ऐसे नहीं करनी है भाई रफा दफा कर दो, नहीं. It is also very important ताकि when you go from the stage ना, everybody believes that यार इसने speech दी थी, he is something, he or she is something. So whenever you're closing a statement must be powerful. For example, that every newspaper in the country is saying, आज हर country का newspaper यही कह रहा है, there is a talking about pandemic में इतने problems आए, that everybody in the every dash, that's every poverty, about poverty, that's every newspaper in the country is saying. हर newspaper country का यही कहना चाह रहा है कि हमें अपना how to overcome from this problem, हम इस problem से कैसे overcome कर सकते हैं. तो powerful statement or a phrase can give your speech to an extent, up to an extent level. So these are the 7 steps which you can use while giving a speech or while delivering a message to the public. और अगर आप एक छोटी speech के बारे में बात करें, 1 to 2 minute speech, तो उसमें आपने एग्जैगरेट नहीं करना. वॉट एवर यू आर स्पीकिंग अबाउट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉर्ट स्पीच दे रहे हो, एक छोटी स्पीच दे रहे हो, तो यू नीड टू स्टिक टू योर टॉपिक. आपने बस अपने टॉपिक के बारे में टिका रहना है. अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम एक स्पीच देने लगते हैं, देन मोस्टली पीपल फियर ऑफ इट, शिवरिंग. तो आपने अपनी ऑडियंस को बस एनालाइज करना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. Preparations, and you have to look after your audience कि who they are, to whom. And next, don't fear. आप नहीं सोचना पब्लिक को कुछ नहीं आता. Today I am there to speak about. That's are the things that help you to speak confidently in front of anyone. And practice in front of mirror help you to gain the confidence. So that's all about it. But don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.